الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے۔ خالق کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج کے بابرکت جمعہ کی اس خوبصورت نشست میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج جس موضوع کا میں نے پھر سے انتخاب کیا ہے وہ بڑا حسین موضوع ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سیرت کے حوالہ سے آپ احباب کے سامنے چند ایک گزارشات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی ہمیں ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا قال فاطمہ بضعۃ منی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جن لمحات میں میں نے آقا کو دیکھا ہے، میں نے حضور کی اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت دیکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جب وہ بچپن میں تھی تو حضرت سیدہ ختیجہ کا وصال ہو گیا۔ جب سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے جب ماں کا سایہ اٹھ جائے تو پھر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی خطرات پر مشتمل ہو جاتی ہے، لیکن سرکار نے حضرت فاطمہ کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کرتے رہے۔ حضرت ام سلمہ حضرت سیدہ فاطمہ کی پرورش کرتی رہی، لیکن اس سے پہلے اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی، جب ماں کا وصال ہو گیا تو سرکار نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دونوں شعبوں کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔
अब आप इसी वकार जरा सोचें कि बाप भी हो और वो खातमुन नबीयीन भी हो और वो रहमतल लिल आलमीन भी हो और वो कायनात के फैसले फरमाने वाला भी हो, इतनी जिम्मेदारियां कंधे पे हो। आज हम सारा दिन काम काज करके हम माँ बाप थक जाते हैं, घर आया तो बीवी को डांट डपट दिया, और बच्चे नहीं तो इससे संभाले जाते, मैंने सारी दिन मेहनत करके आया हूं, मजदूरी करके आया हूं, थका मानद आया हूं, तुझे मेरा कोई ख्याल नहीं है। एक तरफ अपने आप को रखें और एक तरफ आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को रखें। आपका और मेरा काम कोई दूसरा कर सकता है, लेकिन जो अल्लाह ने अपने महबूब को काम दिए हैं वो कोई दूसरा कर सकता नहीं है। सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। सुबह का सूरज जैसे तलू होता है, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेकर दरवाजे दरवाजे पे जाते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं। कहीं से पत्थर खाने को मिलते हैं, कहीं से लोग ओहजरी के टुकड़े और कहीं से गंदगी के ढेर, कहीं से पांव में कांटे, कहीं से यतीमी का ताना, कहीं से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जाता है, किसी गांव से निकाला जा रहा है, किसी घर से निकाला जा रहा है। लेकिन ये साया रहमत थे, हर एक की तरफ से दुश्मनी का ऐलान सुनते, लेकिन मेरे नबी इतने रहीम थे, लोग पत्थर मारते थे, सरकार उन्हें दुआएं अता फरमाते थे। लोग रास्ते में कांटे बिछाते थे, मेरे अल्लाह के महबूब उन पे फूल बरसाते थे। लोग सरकार को सताते थे, लेकिन अल्लाह के महबूब उनके लिए दुआए रहमत फरमाते थे। अब ये ड्यूटी भी सर पे, और सैयदा फातिमा भी छोटी सी बच्ची है। अब सरकार ने इसे बाप का रूप भी दिया और फिर सरकार ने इसे मां की ममता भी दी, और इतनी प्यारी सरकार ने आपकी तरबियत की, इस कदर सैयदा फातिमा के साथ अपना ताल्लुक कायम किया कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतना टाइम अता फरमाया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को इस तरह दर्स दिया, हजरत सैयदा फातिमा को इस तरह रात की इबादत सिखाई, हजरत सैयदा फातिमा को इस तरह कुरान का पढ़ना सिखाया, हजरत सैयदा फातिमा को इस तरह सखावत करना सिखाया, हजरत सैयदा फातिमा को इस तरह सब्र करना सिखाया, हजरत सैयदा फातिमा को इस तरह का अदब करना सिखाया कि एक वक्त ऐसा आ गया, एक वक्त हजरत सैयदा फातिमा पर ऐसा आ गया। हजरत अम्मा आयशा सदीका फरमाती है, मां थी और उम्र में ये भी छोटी थी, और हजरत अम्मा आयशा सदीका हजरत सैयदा फातिमा को देखकर, अब एक मां अपनी बेटी के बारे में, आपको पता है सुतेली मां का अपनी औलाद के साथ किस तरह का सलूक होता है, लेकिन हजरत अम्मा आयशा सदीका अल्लाह के महबूब की ज़ौजा मोहतरमा आप फरमाती हैं, और लफ्ज सुने, और इसके अंदर अपने नबी की प्यारी बेटी की इज्जत और एहतराम के मकाम को एक मां बयान कर रही है कि उसको अल्लाह ने कितनी इज्जतों से नवाजा था। सरकार ने इतना वक्त दिया, इतना अल्लाह के महबूब ने वक्त दिया, किस लिए? तरबियत के लिए। अल्लाह के महबूब की ज़ौजा मोहतरमा हजरत अम्मा आयशा सदीका आप फरमाती है, मा रई तो अहदन अशबहु कलामम व हदीसन। आप कहते हैं मेरे आका ने हजरत फातिमा के साथ इतनी मोहब्बत की और इतना उन्हें कुर्ब दिया और इतनी उनकी तरबियत दी। कहती है जब मैं फातिमा को चलती देखती थी मुझे मोहम्मद का चलना नजर आता था। हमें क्या? हजरत अम्मा आयशा सदीका फरमाती हम बैठी होती, माएँ थी फातिमा की ढेर सारी, और सरकार की 11 अजवाज है, हम बैठी होती और सैयदा फातिमा जब चलने लगती और चल के हमारे पास आती, हम एक दूसरी को यह कहती थी देखो मोहम्मद का चलना देख लो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना देख लो। फिर कहती है हजरत अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है कलामम व हदीसन। जब फातिमा लब खोलती थी और उसके लबों से कलिमात निकलते थे, यूं लगता था जैसे मोहम्मद मुस्तफा बोल रहे, जैसे सरकार दो आलिम बोल रहे हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बेटी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक बयान करते हैं, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार किया जाए। आप फरमाती है इदा दखलता अलैहि काम अलैहा फकब्बलहा। हजरत फातिमा कहती जब हजरत आयशा कहती जब फातिमा मेरे घर में आती और हुजूर बैठे होते थे, अल्लाह के महबूब फातिमा को देख के खड़े हो जाते। सरकार दो आलम सैयदा फातिमा तो ज़हरा को देखकर खड़े हो जाते, और खड़े होकर हजरत फातिमा कहती है सरकार अपनी बेटी की पिशानी को बोसा दिया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को क्या करते? बोसा देते, और बोसा देकर
फिर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर मुझे साथ लेकर हजरत फातिमा के घर जाते। अल्लाह के महबूब मुझे आज कहते आयशा चले ना आज फातिमा के घर चलते हैं। आप कहते हैं मैं फातिमा के घर जाती, मैंने सरकार की तस्वीर इस तरह देखी, फातिमा चलती थी तो मोहम्मद का चलना नजर आता था, फातिमा बोलती थी तो मोहम्मद का बोलना नजर आता था। वह कहती है जब फातिमा के घर जाती, अब सरकार जब फातिमा को आते देखते तो खड़े हो जाते और फातिमा को क्या करते, बोसा देखते। लेकिन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है जब मैं अल्लाह के नबी के साथ सैयदा फातिमा के घर जाती, जैसे सरकार खड़े होते थे उसी तरह हजरत फातिमा अपने काम काज को छोड़कर वो भी खड़ी हो जाती थी। कहती है मैंने उसके खड़े होने को देखा, उसके खड़े होने भी मोहम्मद की तस्वीर नजर आती थी। और फिर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका आप फरमाती हैं जब फातिमा खड़े हो जाते, अब फातिमा आती थी तो सरकार बोसा देते थे, लेकिन जब सरकार हजरत फातिमा के दरवाजे पे जाते थे तो हजरत फातिमा खड़ी होकर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को फातिमा बोसा देती थी। गोया हजरत फातिमा के हवाला से हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ये कह रही हैं कि आपकी जिंदगी का हर गोशा, आपकी जिंदगी का हर गोशा ऐसा था कि जब फातिमा को देखते थे तो तस्वीर मुस्तफा याद आ जाती थी। सरकार की हमें क्या नजर आती थी, अब मैं वो सारे पहलू आपके सामने रखूंगा कि वो किस तरह हुजूर की तस्वीर जो थी वो हमें देखने को मिलती थी। अल्लाह के महबूब ने हजरत सैयदा फातिमा की बड़ी तरबियत फरमाई है और उस तरबियत का असर कायनात ने देखा। जो हजरत सैयदा फातिमा ने अल्लाह के नबी से तरबियत पाई, उसकी तरबियत का असर कायनात ने देखा। अब देखिए हजरत उम्मे सलमा हुजूर के निकाह में आ गई, हुजूर की बीवी है और वो थोड़ी सी उम्र में बड़ी थी फातिमा से। अल्लाह के महबूब ने जब बाहर जाने लगना ना तो सरकार ने हजरत उम्मे सलमा से कहना भी फातिमा की ना तरबियत करना, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। अब सरकार बाहर गए, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मैंने फातिमा को पास बिठाया और बिठा के मैंने चाहा कि फातिमा की तरबियत करो। मैंने उसे अदब की कोई बात की, हजरत सैयदा फातिमा को हजरत उम्मे सलमा तरबियत की बात की, लेकिन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं भी जब मैंने फातिमा को यह चाहा कि इसकी तरबियत करूं, जब उसको मैंने करीब से देखा, मैंने उससे बड़ा तरबियत याफ्ता आज तक नहीं देखा है। जिस बेटी की तरबियत खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो, आपने कहा मैंने जब उसको देखा और मैंने चाहा कि इसकी तरबियत करूं। इसलिए बाप और मां की जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद की तरबियत करे। और तरबियत आज हम समझ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाना तरबियत है, आज समझ रहे हैं कि बायो पढ़ाना तरबियत है, आज समझ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाना तरबियत है, आज साइंस ग्रुप को इख्तियार करना तरबियत का नाम दिया जा रहा है, आज ज्योग्राफिया पढ़ाना तरबियत का नाम दिया जा रहा है। नहीं, खुदारा इस बात को समझें, सबसे पहले बच्चे की तरबियत उसके मां और उसके बाप के जिम्मे लगाई और पहली तरबियत यह है अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। आप समझते हैं कि नहीं, तो सरकार से ज्यादा बेहतर कौन जानता था, अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में हुजूर से बेहतर कौन जानता था। जब सैयदा फातिमा अभी बोल नहीं सकती थी तो कोहे सफा के दामन में सरकार ने गोद में उठाया और उठा के ऐलान क्या किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मैं अल्लाह का क्या, अल्लाह क्या है, वाहदाहु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह वाहदाहु ला शरीक है। अब लोग कहते हैं, साहबा कहते हैं जब हुजूर ने ये ऐलान किया तो सरकार फातिमा के सीने की तरफ इशारा फरमाते थे। गोया फातिमा की पहली तरबियत जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई वो ये फरमाई, फातिमा सबसे पहले याद करने वाली बात यह है अल्लाह वाहदाहु ला शरीक है। अल्लाह क्या है, वाहदाहु ला शरीक है। फातिमा को सीने के अंदर इस बात को नक्श किया कि जहान के हर मामले में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की शहादत में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। फिर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तरबियत का ये पहला जो मामला था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से शुरू फरमाया। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाई और मोहब्बत इंसान को बिगाड़ती नहीं, सवार देती है। आज हमें अपनी औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए। सरकार ने फातिमा को और सारी कायनात को, लोगों को सरकार ने अगर सवारा है तो वो किससे, मोहब्बत से सवारा है। मोहब्बत इंसान को वो सिखा देती है
जो तलवार उसे नहीं सिखा सकती है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, सबसे पहला मरला किसका है? कुरान का। अब देखिए, एक कुरान मैं सिखाता हूं, एक कुरान हमारी मस्जिद के किबला कारी साहब सिखाते हैं, एक कुरान है जो हमारे पीर साहब सिखा देते हैं, एक कुरान है जो पीरों के पीर सिखा देते हैं, और एक कुरान वो है जो सीने अतहर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता है, और जैसे नाजिल होता है फिर सरकार किसी को सिखा देते हैं, किसी को सिखा देते हैं। सरकार ने जब सैयदा फातिमा ने लब खोले और वो कुछ संभल गई, तो सरकार ने उसे जो पहला कलाम सिखाया है वो कुरान करीम सिखाया है। वो क्या सिखाया है? आपने अपनी पुरानी माओं को देखा होगा, देखा है उनके अंदाज जिंदगी। आज तो मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया हमारा। वो माएँ क्या थी? तहज्जुद के वक्त उठती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मदानी दूध में है, साथ मदानी की आवाज थी, साथ अल्लाह की आवाज थी। क्यों थी? क्योंकि उनके वालिदैन उनकी तरबियत करने वाले थे। वो तहज्जुद के वक्त अगर बैल जोतने का उनका मामला था, खेते में हाल चलाने का मामला था, तो वो हमारे बुजुर्ग भी तहज्जुद के वक्त अल्लाह की निदाएं देते थे। मां चाटी वाली, लस्सी वाली, दूध वाली, दही वाली चाटी पे बैठ के साथ मदानी को भी हिलाती थी और अल्लाह का कुरान भी पढ़ती थी। अब ये थी आम तरबियत, और जिसको सरकार ने तरबियत दी और कुरान पढ़ाया और कुरान समझाया, उस मां का आलम क्या होगा? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बेटी है, और इस बेटी ने कुरान करीम को किस तरह पढ़ा? अल्लाह के महबूब के एक सहाबी थे, वो सैयदा फातिमा के दरवाजे पे गए, घर गए, और जब घर गए ना तो उन्होंने पर्दा उठाया, देखा कि सैयदा फातिमा चक्की पे बैठी हुई है। सैयदा फातिमा चक्की पे बैठी हैं और गोद के अंदर बच्चा है, एक हाथ चक्की पे और एक हाथ अपने बेटे की छाती पे। और वो सहाबी रसूल कहते हैं, मैंने ये मंजर देख के मेरी हैरत गुम हो गई। हाथ से चक्की है, हाथ थपकी वाला बेटे के सीने पर है, और लबों पर जो फातिमा के मैंने कलाम सुना वो अल्लाह का प्यारा कुरान, कुरान करीम का कलाम है। आप देखें, वो बुजुर्ग कहते हैं, हाथ कार वाले दिल यार वाले। हजरत सैयदा फातिमा को सरकार ने जो तरबियत दी कि हाथ चक्की पे है और एक हाथ बेटा गोद में है, उसके सीने पे है, और हजरत फातिमा आपके लबों से कुरान निकल रहा है, वो जो पढ़ रही है वो क्या है? कुरान है। तो पता चला जिसको सरकार की तरबियत की घुट्टी मिली हो, वो गैर का कलाम पढ़ के राजी नहीं होते, वो बल्कि अल्लाह की पाक किताब कुरान पढ़कर सरूर लेते हैं। अगली बात आपको इससे कीमती बताऊं, आज हम तो ये बातें बयान करते हुए बड़ा मुआवजा वसूल कर लेते हैं, पहले 2-2, 3-3 लाख भी ले लेते हैं, और ये बात बयान कर रहे होते हैं। हजरत फातिमा, अब जब ये मंजर उसने देखा तो वो वापस लौटा, हजरत मौला अली घर में आए, और 3 दिन बीत चुके थे कि फातिमा ने खाना नहीं खाया। 3 दिन हजरत सैयदा फातिमा ने खाना नहीं खाया है। अब हजरत मौला अली को तीसरे दिन पता चला अदब क्या चीज है, बेटी की तरबियत करके भेजें तो अदब से वो क्या कुछ जीत लेती है, वो कितनी बड़ी साबरा होती है। 3 दिन के बाद हजरत अली को पता चला फातिमा ने खाना नहीं खाया। हजरत अली ने उनसे कहा, आपने खाना नहीं खाया, मुझे बताया भी नहीं है। हजरत फातिमा ने आगे से जो जवाब दिया वो एक मिसाली दुल्हन का जवाब है, एक मिसाली बीवी का जवाब है। उसने कहा, जब मैं घर से निकलने लगी थी, मेरे आका ने मुझे फरमाया था, कभी अपने शौहर से सवाल न करना, अपने शौहर से कभी सवाल, अपने शौहर से कभी मांगना, मुझे आपसे मांगते हुए हया आता है। आज तो डिमांडें खत्म नहीं होती ना, लेकिन इस मिसाली बीवी ने जब अल्लाह के रसूल की गोद से तरबियत पाई और सरकार से कुरान सुना और इतनी प्यारी तरबियत पाके खावत के घर में गई, 3 दिन की भूखी है और 3 दिन के भूख और प्यास के बावजूद शिकवा नहीं किया है, मांगा नहीं है, और भूख और शिद्दत भूख की वजह से ना तो चक्की को चलाना छोड़ा है, ना अल्लाह का कुरान पढ़ना छोड़ा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने फजर की अजान पढ़ी, हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने फजर की अजान पढ़ी, और अजान पढ़ के, क्योंकि फातिमा का घर करीब था, फातिमा के घर के करीब बच्चे के रोने की आवाज सुन ली। अब ये बुजुर्ग सहाबी थे और इन्हें आले बैत से बड़ी मोहब्बत थी, अल्लाह के महबूब की हर निस्बत का बड़ा ये हया करते थे। तो हजरत बिलाल अजान पढ़कर सैयदा फातिमा के घर चले गए। जब घर गए तो पर्दा उठाया तो क्या देखा? हजरत फातिमा सजदे में है और हजरत इमाम हुसैन झूले के अंदर रो रहे हैं।
अल्लाह, क्या अदब सिखाया। आप झूले पे बैठ गए और झूले को हरकत देने लग पड़े। बच्चा चुप कर गया, सैयदा अपनी नमाज में मगन है। एक तरफ ये मंजर है और एक तरफ हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इशा की नमाज पढ़कर क़यामुल लैल के लिए खड़े होते, सारी रात बसर हो जाती, सारी रात बसर हो जाती। और हत्ता के यहां तक बात आ पहुंची कि आपके कदमैन फूल जाते। सारी रात अल्लाह के हुजूर इबादत करते, सारी रात अल्लाह को याद करते। जब सुबह का वक्त होता और वापस लौटते तो हाल ये होता कि बस रात थोड़ी थी, मैं अपने रब से पूरी मुलाकात नहीं कर पाया। एक तरफ सरकार की ये तस्वीर है और दूसरी तरफ सरकार की तरबियत का ये समर नजर आता है। हजरत फातिमा रात का सारी रात इबादत में खड़ी रहती है। इतने तवील सजदे हैं कि दूसरे सजदे का वक्त मिलता नहीं है। सार उठाया, हजरत इमाम हसन कहते हैं, सार उठाती हैं और उठा के अल्लाह से ला लगाती हैं और कहते हैं, मालिक काश तूने इतनी लंबी रात रखी होती, मैं रज के तेरी दीद कर सकती, मैं रज के तुझे देख लेती। मेरा भी इबादत वाला शौक पूरा, हम तो कुछ थोड़ी सी नमाज लंबी हो जाए तो हमारा गम बढ़ जाता है। इधर हजरत फातिमा तस्वीर मुस्तफा इस रंग में नजर आती है। कुरान पढ़ती है तो बस कुरान ही पढ़ते जाती है। अगर नमाज के अंदर खड़ी होती है, नमाज पढ़ती जाती है, वक्त तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन फातिमा की इबादत का मरला रुकता नहीं है। सरकार ने, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सखावत का मरला आया। जब सखावत का एक बंदा आया, मेरे पास वक्त थोड़ा है, बातें ज्यादा हैं। एक बंदा आया, सरकार ने एक दिन मदीने में ऐलान किया भी जिसने जो कुछ लेना है आ जाए। एक बंदे को इरादी था, उसे तीसरे दिन पता चला भी सरकार ने ऐलान किया है भाई जो कुछ लेना है आ जाओ। वो तीसरे दिन जब महफिल खत्म हो जाए तो कोई आ जाए तो हम क्या कहते हैं, लंगर नहीं है, प्रोग्राम खत्म हो गया है। प्रोग्राम वो बुजुर्गों के और दस्तूर हैं, वो खत्म हो जाने पर भी खत्म नहीं करते। वो सरकार की बारगाह में आया, उसने कहा हुजूर मैंने ऐलान सुना था, आपने कहा था भाई जिसे जो चाहिए वो ले जाए। अल्लाह के महबूब आगे से मुस्कुरा पड़े। पास वाले ने कहा तुम्हें पता नहीं प्रोग्राम खत्म हो गया है, प्रोग्राम खत्म हो गया है। अल्लाह के महबूब ने उनसे फरमाया दुनिया का प्रोग्राम खत्म हो सकता है लेकिन मोहम्मद के दर का प्रोग्राम कभी खत्म हो सकता नहीं है। अल्लाह के महबूब के दर का प्रोग्राम कभी खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह के महबूब ने उस अपने इरादी से यह कहा जा मदीने का बाजार में, मैं मोहम्मद का नाम किसी के पास अमानत रख, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम किसी के सामने ले। और यहां पे हमें एक पैगाम दिया, माशरे में तेरा ये अखलाक होना चाहिए कि तेरे नाम पर कोई किसी दूसरे को मतलब दे दे, तेरे नाम पर कोई तेरे हवाले से अच्छा कमेंट कर दे। तो अल्लाह के महबूब ने कहा मदीना की किसी दुकान पे चला जा और मेरा नाम ले और जो कुछ तुमने लेना है वो ले जा, मैं मोहम्मद जानू मेरा काम जानू। कभी दर से किसी को खाली भेजा, अब फातिमा के दरवाजे पे आ जाए। बनु सुलैम का एक बंदा बूढ़ा था, उसने कलिमा पढ़ लिया। जब कलिमा पढ़ लिया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा भी तेरे पास कुछ है? उसने कहा वल्लाह या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूं। अल्लाह के महबूब ने कहा इसकी कुछ मदद करो। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मैंने इसे ऊँटनी दी। अल्लाह के महबूब ने फिर तरगीब दिलवाई। हजरत मौला अली उठे और वो कितना खुशबख्त बंदा था, हजरत अली ने अपनी दस्तार उतार के उसके सर पे रख दी। हजरत मौला अली ने अपनी दस्तार उतार के उसके सर पे रख दी। अब सरकार ने कहा इसके खाने का भी कोई एहतमाम करो। हजरत सुलेमान फारसी ने उसे साथ ले लिया और मदीना के कई घरों में गया, लेकिन कहीं पे खाना था ही नहीं। बेचारा क्या किसी को देता। यहां पे तो खाना पीना हुजूर की तस्वीर थी, अल्लाह के महबूब की बारगाह में बैठे रहना था। तो वो चलते चलते सैयदा फातिमा के दरवाजे पे आ गए। जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पे आए तो उसने हजरत सुलेमान फारसी ने अर्ज किया कि मां जी ये मामला है, अल्लाह के महबूब ने भेजा है, इसके खाने पीने का कोई एहतमाम करना है। हजरत फातिमा ने हजरत सुलेमान फारसी से आगे कोई बात ना की, लेकिन सीरत निगाह लिखते हैं 3 दिन गुजर चुके थे, फातिमा के घर का चूल्हा चला नहीं था। हजरत सैयदा फातिमा ने अपना दुपट्टा उतारा, जिसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ने चादर तत्हीर कहा है, वो चादर उतार ली और सैयदा फातिमा ने वो चादर हजरत सुलेमान फारसी को अता फरमाई। कहा ये चादर ले जा। एक यहूदी था, वो खानदान नबूवत से बड़ा प्यार करता था, शमऊन उसका नाम था। वो चादर ले जा और ये शमऊन के पास अमानत रख के उससे कर्ज ले आ ताकि मैं इसके खाने पीने का बंदोबस्त करूं। अपने खाने की बात आई तो 3 दिन भी अल्लाह से मांगा
नहीं है, अपनी कोई चीज बेची नहीं है। लेकिन सखावत फातिमा तो ज़हरा देखें, अल्लाह के महबूब के नबी की बेटी की सीरत मुस्तफा में मुमासलत देखें कि हुजूर भी सखी है और हुजूर की तरबियत से हजरत फातिमा के वजूद में सखावत कितनी है। वो लेके गए शमून के पास और उस बूढ़े सहाबी को भी साथ ले गए और कहा ये अल्लाह के नबी की बेटी की चादर है और उसने दी है, चादर रख ले और इसे कुछ कर्ज दे दे ताकि ये नया नवेला जो मुसलमान हमारा बुजुर्ग हुआ है इसके खाने पीने का कुछ एहतमाम कर दिया जाए। उसने जब चादर पकड़ी और चादर हो फातिमा की और चादर ततहीर हो और वो हाथ में आ जाए और बंदा फिर ईमान से महरूम रह जाए। वो शमून यहूदी था, जब फातिमा की चादर पकड़ी, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत आले नबी है और ये कैसे हो सकता है कि वो जिससे आल का सिलसिला शुरू हो रहा है उसकी निस्बत किसी को मिले और फिर वो काफिर रह जाए। अब चादर हाथ में आई, जैसे उसने चादर पकड़ी उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने हजरत सलमान फारसी को कहा मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं कि मैं फातिमा के बाबा मोहम्मद मुस्तफा का ऐसे कलमा पढ़ता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी चादर उतार कर अल्लाह के महबूब नबी के दीन के लिए पेश कर दी। ये चादर भी देकर आप सरकार के किसी उम्मती को, अल्लाह के नबी को भी भूखा गवारा नहीं है और सैयदा फातिमा को भी गवारा नहीं। सरकार ने तरबियत की, पहले नंबर पे कुरान समझाया, फिर तरबियत की रातों को इबादत करना सिखाया, फिर तरबियत की तो उसे सखी बना दिया, उसे सखावत का पहलू अता फरमाया। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना, अब जब ऐसी मां हो और वो तरबियत करने वाली हो अपनी औलाद की, फिर नाम की हसन और हुसैन ना आए तो और क्या होगा जी? फिर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ना आए तो फिर क्या होगा? अपनी बात हजरत फातिमा की ये है भी, सीरत निगार लिखते हैं भी चक्की चला चलाकर आपके हाथों पे छाले पड़ गए और इतने नरम गुदास हाथ, उन हाथों पे छाले और आटा चक्की चलाने की वजह से कपड़ों पर गर्द, लेकिन अपने लिए कभी जिंदगी में कुछ मांगा। अल्लाह के महबूब फरमाते मेरा एक दिन दिल किया भी फातिमा को देख के आता हूं। मैं जब उसके दरवाजे पे गया तो पर्दा उठाया ना, अल्लाह के नबी फरमाते मैंने फातिमा को जो सूट डाले हुए देखा, उस सूट के अंदर 13 पाबंद लगे हुए थे। देखिए सरकार की सीरत के असरात, जो मालिक कौनैन है, जो मलका कायनात है, जो वारिस कायनात है, 13 पाबंद और फिर लब पे क्या है, या अल्लाह तेरी रजा पे राजी हूं, तेरी रजा पे क्या हूं। आज हमारे तन के कपड़े भी अच्छे होते हैं, खाना भी अच्छा है, लेकिन किसी ज्यादा दौलत वाले की दौलत देकर हम बेसब्री का मुजाहरा कर देते हैं। हजरत फातिमा के 13 पैबंद आपके लगे हुए हैं, हाथों पे छाले हैं। सरकार देकर चले गए। हजरत मौला अली दाखिल हुए तो वो जब आए तो उन्होंने एक सरकार की मजलिस में एक काम देखा भाई, शाम से कुछ लौंडियां अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश की गई और पेश करके हजरत अली ने देखा मौका बड़ा है, फातिमा के हाथों पे छाले बन गए, कपड़े भी फटे पुराने रहते हैं, कभी हसन की तरबियत कभी हुसैन की तरबियत। तो चलो फातिमा को कहता हूं अपने बाबा की बारगाह में जाए और कुछ मांग लें, चलो एक लौंडी मिल जाएगी, उससे काम काज करवाएंगे। हजरत फातिमा को हजरत अली ने भेज दिया। जब गए आपने पर्दा उठाया और उठा के देखा कि सरकार अहले सुफा को दीन सिखा रहे हैं। अल्लाह के नबी कुछ तालिब इल्मों को क्या सिखा रहे हैं? दीन। देखा कि उनकी हालत जार बड़ी खराब है, किसी का लिबास कोई नहीं, जगह कोई नहीं है, किसी की मैली है तो साट सी है, किसी का सर पे साया कोई नहीं है, नीचे चटाई कोई नहीं, तो आप वापस लौट आए। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? उसने कहा नबी ये रहमत जिन लोगों को सामने बिठा के दीन समझा रहे हैं उनकी हालत को देखकर मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा मेरे से ज्यादा ये हकदार है। वापस लौटी, हजरत अली ने फिर साथ लिया, दोनों चले गए। जाके अल्लाह के नबी से कहा हुजूर हमारे पर मेहरबानी करें। अल्लाह के नबी ने कहा तुमसे लगता है ये ज्यादा हकदार है, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, वापस लौट गए। रात को अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के दरवाजे पे गए और हजरत अली को और फातिमा को सामने बिठाया। कहा तुम्हें दुनिया की लौंडी चाहिए कि इससे ज्यादा कभी चीज चाहिए, ज्यादा अच्छी चीज चाहिए? हजरत फातिमा ने कहा बाबा हमें ज्यादा अच्छी चीज अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज के बाद 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार सुबहान अल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर ये अपनी तस्बीह में शामिल कर लो और 33-33 बार रात को सोते वक्त इन्हीं तस्बीहात को शामिल कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी कुव्वत भी बढ़ जाएगी और तेरा अल्लाह तेरे ऊपर राजी भी हो जाएगा। फातिमा ने फिर सारी जिंदगी अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं है। जब भी मांगने का वक्त आया, हजरत इमाम हसन कहते हैं मैं एक दिन मां के पास गया तो मैंने ये पूरे महीने का मामूल देखा, सारी सारी रात रोती है,
सारी सारी रात अल्लाह से गिरिया सारी करती है, तौबा इस्तगफार करती है, बाने के हुजूर तवज्जो के साथ रात बसर करती है। मैंने एक महीने तक मामूल सुना, देखा, हर रोज दुआ करती है, हर रोज क्या करती है? दुआ करती है। लेकिन मैंने कभी भी फातिमा को अपने लिए मांगते हुए नहीं सुना है, या अल्लाह मुझे फला चीज दे, मुझे फला चीज दे दे। मैंने कहा अम्मी जान, ये आप इतनी दुआएं करती हैं, इतनी इल्तजाएं करती हैं, इतनी फरियादें करती हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तो हजरत फातिमा ने कहा मुझसे मेरे नबी की उम्मत ज्यादा हकदार है, मैं उसी के लिए मांगती हूं, मैं उसी के लिए क्या करती हूं? मांगती हूं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा, मौत का वक्त करीब आ गया। जब मौत का वक्त, सरकार की दुनिया से रेहलत का वक्त करीब आया, आपको पता है हुजूर के पास हजरत फातिमा गई और सरकार ने बताया कि मेरा सफर आखिरत है। हजरत फातिमा की आंखों से आंसू जारी हो गए, सरकार से मोहब्बत देखें, आंसू जारी हो गए। फिर सरकार ने करीब किया, फिर सरगोशी की, तो हजरत फातिमा मुस्कुरा पड़ी। हजरत सैयदा फातिमा, अगर आपको कोई बंदा कहे भी आज मैं मर रहा हूं, कल आपने मर जाना है, ये कहे आज मैं मर रहा हूं, कल आपने मर जाना है, तो रिएक्शन क्या होगा? आप तो बड़े परेशान हो जाएंगे और मौत का डर सुन के आपकी चीखें निकल जाएंगी। हजरत फातिमा कहती है, हजरत सैयदा फातिमा को हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के नबी के साथ इतनी मोहब्बत थी, जब ये सुना कि मैं मौत के जरिए अल्लाह के नबी से कल मिल जाऊंगी, तो आप मुस्कुरा पड़ी। गोया सरकार की मोहब्बत में मौत को गले लगा दिया। कहा वो मौत मुझे लाख बार महबूब है जो मुझे नबी रहमत का दीदार करवा दे, अल्लाह के नबी के करीब कर दे, अल्लाह के रसूल के क्या करे? करीब कर दे। तो अहबाब इसी वकार हजरत सैयदा फातिमा की जिंदगी सारी की सारी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। एक माँ के लिए मिसाली माँ का नमूना है, एक बेटी के लिए मिसाली बेटी का नमूना है, एक बहू के लिए मिसाली बहू का नमूना है। और हम सब के लिए सारे गोशे कुरान के देखें, सखावत के देखें, सबर के देखें, तो वो सारे गोशे सैयदा फातिमा के असलूब से हमें मिलते हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।